নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি গৌতম আদানীক লৈ যি এক প্ৰবঞ্চনা আৰু উৎকোচৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে 2000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰি বা 2000 কোটি টকাৰ এই যি স্কেম হৈছে, এই স্কেমৰ পিছতো কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নহয় গৌতম আদানী, কিয়নো গৌতম আদানীৰ লগত আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই ঘটনাক লৈ গৌতম আদানীৰ গ্ৰেপ্তাৰটো বাদেই গৌতম আদানীৰ এই ঘটনাৰ কোনো তদন্তই নহয়, শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে গৌতম আদানীক। এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। 2000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিও গ্ৰেপ্তাৰ নহয় গৌতম আদানী। মই লিখি দিব পাৰিম, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহব গৌতম আদানী। আমেৰিকাৰ লগতে ভাৰততো অপৰাধ কৰিছে আদানীয়ে। কেৱল ভাৰততেই নহয়, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো অপৰাধ কৰাৰ যি এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আদানীৰ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থাকে বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰটো বাদেই এই ঘটনাৰ তদন্তই নহয়। আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ উৎকোচ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগক লৈ সংবাদমেল ৰাহুল গান্ধীয়ে। সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে উৎকোচৰ প্ৰস্তাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে। 2029 কোটি টকাৰ উৎকোচৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আদানী গ্ৰুপে। মাৰ্কিন এটৰ্নী কাৰ্যালয়ে উত্থাপন কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকলক উৎকোচৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল বুলিও এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে এয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 2000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিও গ্ৰেপ্তাৰ নহয় গৌতম আদানী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আদানীৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে, সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেই মই লিখি দিব পাৰিম, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় গৌতম আদানী। আমেৰিকাই নহয়, ভাৰততো অপৰাধ কৰিছে আদানীয়ে। আমেৰিকাৰ তদন্তকাৰী সংস্থাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আদানীৰ নিয়ন্ত্ৰণত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকে বুলি এক বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰটো বাদেই এই ঘটনাৰ কোনো তদন্তও কৰা নহ'ব। আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ, আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ উৎকোচৰ অভিযোগক লৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। মন্তব্য আছে ৰাহুল গান্ধীৰ, কি কৈছিল শুনোৱা। जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी।
और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं?
अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े।